Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, we're going to talk about GS Paper 3 for the mains examination. Here, along with explaining the strategy, sources, and approach, I'm going to bust some myths about GS Paper 3. The first one is that GS3 is the same as economy, and the second one is that the paper is extremely dynamic and current affairs based. I'm not saying it's not dynamic at all, but it's 60% static and 40% dynamic, and I'll show you that today. So that we can have an idea of what we need to face, we need to look at the syllabus and we need to look at the previous year questions. So इन दोनों चीजों को देखते हैं. But before that, let me show you a thorough analysis of the GS3 paper. जो ये myth है that GS3 is equal to economy, मैं इसको break करता हूँ. अगर आप PYQ analysis करेंगे किसी भी GS3 के पेपर में of the last 5 years, you will find that economy से question number 1 और 2 हैं of 10 marks each, and question number 11 and 12 हैं of 15 marks each. So economy every year is only worth 50 marks. So economy is merely 1/5 of the GS3 paper. Question number 3 and 4, question 13 and 14 will be from agriculture. Yes, this is not the same as economy. It is a completely different subject, completely different syllabus, and completely different writing abilities required. Again, 50 marks for agriculture. 50 marks will be there for science and tech, question 5 and 6, and question 15 and 16. Question 7, 8, 17, and 18 will be from environment and disaster management. Same format as 7 and 8 are 10 markers, 17 and 18 are 15 markers. तो ये 30 marks, ये 20 marks. Environment and disaster management के मिलके 50 marks का पेपर आता है. And question 9, question 10, and question 19 and question 20 are security. And this is again 50 marks. So all these 5 subjects, economy, agriculture, science and technology, environment and disaster management, and security, are equal parts in GS3. इस चीज को प्रूव करने के लिए लेट मी टेक यू टू द पेपर ऑफ 2022 CSE मेंस एग्जाम एंड लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. Question 1, as I have told you, question 1 is generally from economy. So question 1 and question 2 about PPP and inclusive growth, both of these are from economy. So these are now 20 marks for economy. But ऐसे ही हम क्वेश्चन 3 पे जाएंगे, यू विल सी क्वेश्चन ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली एग्रीकल्चर के सिलेबस से आया है. क्वेश्चन 5 एंड 6 विल बी रिलेटेड टू साइंस एंड टेक. क्वेश्चन 7 एंड 8, जैसे यहाँ देख सकते हो आप, फोटोकेमिकल स्मॉग and cloud burst, environment and disaster management. Question 9 and 10 will be on internal security, types of organized crimes, and maritime security challenges. Similarly, ये पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा in the 15 markers. Question 11 इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है. Question 12 is about energy needs of India, again directly from the economic syllabus. So 2 more 15 markers from economics. Now we'll have 2 15 markers from agriculture. So agriculture products की upstream and downstream मार्केटिंग प्रोसेस के बॉटलनेक्स पूछे हैं डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, दिस इज अ एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट अगेन 13 and 14 are from agriculture. 15 and 16 are from science and tech. 15 is about the James Webb Space Telescope. 16 is about vaccine development. 17 and 18 global warming and coastal erosion. So again environment and disaster management. 19-20 again internal security, एक साइबर सिक्योरिटी, एक नक्सलिज्म. So as you must have understood by now that the GS3 paper is hardly only economics. इसमें 5 चीजें हैं. There is economics, there is agriculture, there is science and technology, there is environment plus disaster management as one subject, and finally there is internal security. यही चीजें मिला के ये पेपर बनता है, एंड ऑल ऑफ दीज पार्ट्स आर इक्वल पार्ट्स. तो हमें इनको एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस वी हैव टू गिव देम ऑन इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल डिसरिस्पेक्ट एज द केस में बी. अब स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के सिलेबस से. इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों 50 मार्क्स के हैं. यहाँ पे ग्रीन से इकोनॉमी का सिलेबस मार्क्ड है और येलो से एग्रीकल्चर का. लेट्स सी इट. राइट, तो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. जनरली इससे एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. तो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो ग्रेट, नहीं तो आप विजन आईएएस की समरी पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, द वन दैट इज 100 पेजेस, वो वाली समरी की बात कर रहा हूँ. आप एक दिन में इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो.
but it will give you a lot of hints and a lot of fodder material for economics. Second question is inclusive growth and issues arising from it. इंक्लूसिव ग्रोथ में आप कोई एक कंपाइलेशन पढ़ लीजिए ऑफ एनी कोचिंग, विजन की भी ठीक है, बाकी की भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए. बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं. यू विल फाइंड द एंटायर डायमेंशंस दैट आर नीडेड. ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी. देन गवर्नमेंट बजटिंग. अगेन यू विल हैव सम प्रीलिम्स नॉलेज जहां से भी आपने लियो अबाउट कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट एक्सेट्रा. देन इस साल की जो बजट आएगी, तो जो बजट स्पीच जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं, उस बजट स्पीच को पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स पता चल जाएंगी और गवर्नमेंट का एक बहुत मैक्रो बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग इन द नेक्स्ट 1 year, एंड यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज. अगेन मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस फिर यहाँ कंटिन्यू होता है. इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अगेन यहाँ पर प्रीलिम्स नॉलेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये आंसर्स लिख सकते हैं. राइट, अगेन इकोनॉमिक सर्वे विल हेल्प यू इमेंसली हियर बिकॉज इंडस्ट्री पे भी एक चैप्टर होता है और लेबर पे भी एक चैप्टर होता है इन द इकोनॉमिक सर्वे. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज. अगर आप मेरे से पूछो तो इस पार्ट को प्रिपेयर करने का बेस्ट सोर्स है नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया. उसमें 6 चैप्टर्स हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईच चैप्टर इज जस्ट अबाउट 2 pages. उसमें स्टैट्स दिए हुए हैं, इश्यूज दिए हुए हैं, वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, जो जो हमें एक आंसर के लिए चाहिए होता है. Beautifully it has been represented. I think one of the best documents that you can have for GS3 and GS2. आपको definitely इसको रेफर करना चाहिए. This is नीति आयोग strategy for new India at 75 years. Then investment models, again any coaching compilation, इसमें जो questions आते हैं generally they are related to public private partnership, foreign direct investment, या कभी कभी अगर पूछ लिया तो hybrid annuity model वगैरह. अभी तक शायद पूछा नहीं है but can be asked. So any one compilation and your prelims knowledge will suffice. अब सेकंड चीज जो यहाँ पे येलो से मार्क्ड है, ये इकोनॉमी नहीं है, ये है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर का सिलेबस देखते हैं. क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इरिगेशन सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फंक्शनिंग लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स. अगर आपने जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था, इफ यू कैन जस्ट रिकॉल दैट क्वेश्चन, in that question alone there was जो अभी हमने पेपर देखा है उसमें भी there was upstream and downstream marketing of agricultural produce के process में क्या bottlenecks हैं. so this was asked as it is, right. then food processing भी पूछा हुआ था जो हमने अभी पेपर देखा है. food processing again part of agriculture and land reforms in India. तो ये आपके agriculture के topics हैं. so 50 marks each for economy and agriculture. economy के लिए prelims knowledge is very important. पहले आप अपने static कंसेप्ट ठीक करो, नहीं तो आप मेंस का आंसर नहीं लिख पाओगे. इकोनॉमिक सर्वे इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट सोर्स. आप पूरा पढ़ पाएं तो बहुत बढ़िया, बट बहुत बड़ा होता है, पूरा पढ़ना डिफिकल्ट होता है. तो आई वुड अगेन रेकमेंड दैट आप उसमें किसी भी कोचिंग की समरी पढ़ लें. इंफ्रास्ट्रक्चर में नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज. इसमें आपको बहुत चीज और भी समझ आ जाएंगी. बजट स्पीच से यू कैन अंडरस्टैंड द नोटेबल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इनकी इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. फॉर एग्रीकल्चर अगेन देयर इज ह्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट. सिलेबस तो हमने अभी देख ही लिया था. अगेन नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया हैज 3 चैप्टर्स ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम. उसमें आपको बहुत स्टैट स्कीम्स और बहुत चीजें मिल जाएंगी. डेफिनेटली इसको रेफर करना. इकोनॉमिक सर्वे हैज अ चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है. मेंस 365 को आप रेफर कर सकते हैं फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ इट. बोथ फॉर इकोनॉमी एंड फॉर एग्रीकल्चर मेंस 365 इज डिसेंट. एंड विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल भी यहाँ देख सकते हैं. बट अगर आप मेरे से पूछें तो नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर प्लस योर प्रीलिम्स नॉलेज विल बी सफिशिएंट फॉर द स्टैटिक पार्ट. इसके अलावा आपको मेंस 365 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. अब मैंने इतनी बार कह दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. दिस फाइल इज अ year by year topic by topic analysis of previous year questions of GS3 and it can be found on my telegram channel. You can search for it, you'll find it. Okay, देखो inclusive growth was a topic in the मेन सिलेबस फॉर इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में 2014 में इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन पूछा, 2013 में इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन पूछा, 2016 में प्रधानमंत्री जनधन योजना और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्वेश्चन पूछा. देन 2017 में सीधा पूछा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. 2019 में पूछा स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेंडेड टू मीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी. 2020 में पूछा इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल इश्यूज ऑफ इक्विटी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. एंड 2022 में इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी.
if you look at this 2022 question, is inclusive growth possible under market economy, and you look at 2014 का question, which again discusses capitalism and inclusive growth, they are effectively the same question. तो ये जो मार्केट में एक मिथ है कि GS3 बहुत ही डायनेमिक पेपर है, यू कैन सी दैट द सेम डायमेंशन हैज बीन आस्क्ड. बीच में एक आधी बार कोई गवर्नमेंट स्कीम ऐड कर दी, कुछ कर दिया, बट अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ोगे तो आप प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? So there are massive repetitions from PYQs even in a paper that is considered to be dynamic. ये बात कई बार खुद सिलेक्ट होने के बाद भी समझ आती है, जैसे मुझे अब समझ आ रही है that it would have been better अगर इकोनॉमी के लिए rather than chasing current affairs, which was the mistake I made, which is probably why I have not scored. I could have scored even higher in GS3. मैंने उतना हाई स्कोर नहीं किया, तो मैं उससे भी जितना मैंने स्कोर किया है, स्कोर 81. इस साल मार्क्स सबके कम रहे हैं. अब मैं दिखाया भी था, रैंक 1 के मार्क्स 88 हैं. आई कंपेयर्ड माई मार्कशीट टू बसंत हु इज रैंक 76, उनके 79 मार्क्स हैं. इस बार थोड़ी मार्किंग कम रही है, बट आई थिंक आई कुड हैव स्कोर्ड इवन हायर इफ मेरे को ये पता होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैं फोकस करूं रादर दैन चेजिंग आफ्टर करंट अफेयर्स, बिकॉज दैट बिकम्स द आइडिया. प्री और मेंस के बीच में मेंस 365 रिलीज होगा, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना होगा, बजट भी पढ़ना होगा, तो इससे होता क्या है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स चेज करते रह जाते हो, बट यू डोंट रियलाइज दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी वैल्यू है, राइट? अब जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी सिलेबस एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी सिलेबस, जैसे हमने देखा था. 2017 का क्वेश्चन था डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स अंडर पीपीपी. 2022 जिस मेंस में मेरी रैंक आई है उसमें क्या पूछा? पीपीपी रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जामिन पीपीपी मॉडल इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन. अगर मैं ये क्वेश्चन अच्छे से लिख के गया होता, मैंने इसका ठीक आंसर लिखा है, मैंने मणिशंकर अय्यर कमेटी मेंशन करी है, बट आई थिंक मैं इवन बेटर आंसर लिखता अगर मैं ये क्वेश्चन और अच्छे से करके गया होता. तो द पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ गोल्ड माइन फॉर यू. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट है. ये क्वेश्चन अगर आपने लिखा हुआ है तो ये आप बहुत अच्छे से लिखोगे, राइट? एंड आई विल शो यू दिस अक्रॉस GS3. इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन इकोनॉमी. इकोनॉमी तो लोग सबसे ज्यादा उसको दे कंसिडर इकोनॉमी द मोस्ट डायनेमिक सब्जेक्ट, बट बाकी में तो आप देखोगे और भी ज्यादा है. जैसे ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है, एग्रीकल्चर में 2022 में जिस मीन्स में मेरी रैंक आई है, दोबारा से क्या पूछा? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, राइट? रैंक आई है, सिलेक्ट हुआ, फिर भी मुझको नहीं पता था कि 2019 में एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ था. आई हैड रेड अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बिकॉज नोट्स में, कंपाइलेशंस में मिल जाता है आपको, बट अगर मैं क्वेश्चन एज इट इज लिख के गया होता रादर देन चेजिंग आफ्टर करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग एल्स, मैं सारे क्वेश्चंस लिख के जाता और मैं ये क्वेश्चन लिख के जाता तो मैं इवन बेटर आंसर्स लिखता, एंड डेफिनेटली मेरे 2 या 3 नंबर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके बढ़ जाते, एंड 2 मार्क्स इंक्रीज फॉर मी वुड हैव मेंट अ रैंक नियर 250 फ्रॉम 297, राइट? तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से. तो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से समझना है तो प्लीज समझो ये पेपर डायनेमिक नहीं है. पहली बात, ये पेपर सिर्फ इकोनॉमी नहीं है. दूसरी बात, ये पेपर डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक भी है, देयर इज अ डायनेमिक कंपोनेंट, बट फॉर दैट डज नॉट मीन कि आप PYQ इग्नोर कर दो. करंट अफेयर्स का इतना हवा बन जाता है मार्केट में कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करने लगते हैं. देन इंटरनल सिक्योरिटी, मेरे हिसाब से ये वेरी डूएबल पार्ट है. दिस इज एन ईजी पार्ट, इट इज सॉल्वेबल. इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लेना, थिंग्स विल बिकम मच इजियर फॉर यू. अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर क्रिटिकल. विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है उसमें डिसेंट आइडिया आपको मिल जाएगा. अगर आपको और वैल्यू एडिशन चाहिए तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. आई हैव रेड देम, बट द पॉइंट इज इसमें कई बार वी गेट सक्ड इनटू इट. तो आप ORF की वेबसाइट पे जाइए, जस्ट सर्च नक्सलिज्म, राइट? जैसे नक्सलिज्म पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, सर्च साइबर सिक्योरिटी एंड रीड 1 or 2 आर्टिकल्स. आपको बहुत बढ़िया इसमें वैल्यू एडिशन मिलेगा. जैसे इस बार अग्निपथ स्कीम पे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं. तो अगर आप ORF पे जाएंगे तो पहले लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर, उन्होंने खुद एक आर्टिकल लिख रखा है ऑन दिस अग्निपथ स्कीम. ही इज नाउ अ मेंबर ऑफ द UPSC हु इज द पर्सन हु टुक माय UPSC इंटरव्यू. तो इतने लर्नेड लोग भी, इतने बढ़िया लोग भी इस वेबसाइट पे लिखते हैं, तो हमें जरूर ORF को जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट? ओके, नाउ अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ of the syllabus. So syllabus is linkages between development and spread of extremism. इस टॉपिक में 3 फर्दर टॉपिक्स आते हैं: लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी. देन देयर इज रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी. तो इसमें भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, स्टेट एक्टर्स कौन कौन से होंगे, नॉन स्टेट कौन कौन से होंगे. देन देयर इज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इज अ टॉपिक, मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज अ टॉपिक, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज अ टॉपिक, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ टॉपिक, राइट? तो ये जो टॉपिक्स हैं
ये आपको ब्रेक डाउन करने हैं, यू हैव टू ब्रेक डाउन ऑल द टॉपिक्स, ब्रेक डाउन देयर डायमेंशंस। जैसे मान लो मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन आया, तो यू विल सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है, देन यू विल सी व्हाट आर द कॉजेस, you will see what are the impacts, what are the Indian measures that have been taken against money laundering, what are the global measures that have been taken against money laundering, what is the legal definition of money laundering under PMLA। एंड इस पे रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट केस हुआ था जहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इस बार क्वेश्चन भी लाइकली है। यू हैव टू ब्रेक डाउन एवरी टॉपिक इन द सिलेबस लाइक दिस, स्पेशली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी बहुत हेल्प होती है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक आई हैव सेड आर क्रिटिकल, तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। अगेन दिस फाइल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा है अबाउट ड्राइवर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विद मलकानगिरी एंड नक्सलबारी फोका इन 2015। Then 2018 में LWE is showing a downward trend but still affects many part of the country. Explain government of India's approach to counter LWE. Then LWE क्यों हो रहा है in eastern part of India and what strategy should we adopt? Same question. Government of India's approach explain करो, क्या strategy adopt करनी चाहिए? Same question. यहाँ पे भी 2022 में इस means में भी same question. Naxalism is a social, economic and developmental issue. Discuss emerging issues. Suggest a multi-layered strategy to tackle the menace of Naxalism. Exact things are being repeated year on year. तो ये पेपर कहीं से भी डायनेमिक तो नहीं है। हाँ, इसमें करंट अफेयर्स का कंपोनेंट है। जैसे आप ये 2019 का क्वेश्चन देखोगे ऑन यूएपीए एंड एनआईए एक्ट, उस साल ये दोनों अमेंड हुई थी, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड है। बट दैट इज जस्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड दैट ईयर। नॉट ऑल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डायनेमिक, बहुत क्वेश्चन स्टैटिक भी हैं, तो सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है ये पेपर। It's not just economy, it's not just current affairs. Then again, next topic we are going to come to is environment and disaster management. The idea of environment and disaster management here is that the syllabus is very cryptic. अगर आप syllabus देखोगे तो लिखा है सिर्फ conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, disaster and disaster management. तो कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें ऑफर नहीं की गई। तो पहले तो प्रीलिम्स के साथ एक्स्ट्रा जो टॉपिक मिला है, राइट, वो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA के प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है। अदर देन दैट आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज विल डू फॉर एनवायरमेंट, उसको बस आपको मेंस की तरह फ्रेम करना है। तो प्री की नॉलेज और मेंस 365 दिस शुड बी इनफ फॉर एनवायरमेंट, अगर आप ये EIA वाला टॉपिक और पढ़ लेते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप कोई भी कोचिंग की कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, एंड अगर आपके पास टाइम है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सेकेंड ARC की थर्ड रिपोर्ट विच इज क्राइसिस मैनेजमेंट, आप इसको पढ़ो। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। आपको टाइम लगेगा, थोड़ी बड़ी है, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। डिजास्टर मैनेजमेंट में बेसिकली दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी। जो चीज हमें लगता है कि डिजास्टर है, जैसे हमें लगता है कि अर्थक्वेक इज अ डिजास्टर, बट अर्थक्वेक एक्चुअली इज अ हैजार्ड। डिजास्टर वो बनता है हमारी वल्नरेबिलिटी से, हमारी लैक ऑफ कैपेसिटी टू कोप से। ये टर्म्स डिजास्टर, हैजार्ड, रिस्क, जोनेशन, वल्नरेबिलिटी, इन चीजों का मीनिंग क्या होता है ये आपको यहाँ समझ आएगा। And then you have to understand specific disasters like earthquake, like landslide, like let's say cloud burst। और ये अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की NCERT देखो तो उसमें बहुत अच्छे से गिवन है। अब नेक्स्ट कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर साल कुछ ना कुछ वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड देयर इज नॉट अ लॉट वी कैन डू अबाउट इट। जैसे 2021 में दे आस्क्ड अबाउट ब्लू LEDs, एंड ये कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, इसमें हम कुछ खास कर नहीं सकते। ये 2014 का नोबेल प्राइज है, तो ऐसा भी नहीं है कि करंट अफेयर्स बेस्ड था। बट हम करेंगे क्या, वील टेक अ सॉलिड स्टैटिक बैकिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स, साथ में हम डालेंगे मेंस 365 और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हम ऐड करेंगे, राइट। मोस्टली द क्वेश्चंस दैट आर देयर आर एप्लीकेशन बेस्ड। आपको यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में DNA टू RNA टू प्रोटीन बनाने को नहीं आएगा, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस आपसे पूछी जाएंगी, राइट। अच्छा, अगेन लेट्स लुक एट द सिलेबस। तो सिलेबस सेकंड लाइन क्या कहती है, अवेयरनेस इन IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक एंड इश्यूज रिलेटेड टू IPR। तो ये तो हमारा सिमिलर है प्रीलिम्स को, बट इफ यू लुक एट दिस अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, दिस इज अ न्यू टॉपिक। तो हमें इंडियन साइंटिस्ट की अचीवमेंट पढ़नी है, एंड IPR एंड पेटेंट लॉ पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में हमें देखना है। इसमें भी अगेन एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस एंड टेक में भी देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। जैसे यहाँ 2015 में देखा, पूछा गया अर्थक्वेक्स के बारे में एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट, ठीक है। 2016 में पूछा गया क्लाउड बर्स्ट इन उत्तराखंड, ओके। देन
2021 में अगेन वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक, salient features of major disasters caused by earthquake in different part of India during the last 3 decades. तो 30 years के earthquake पूछ रहा है, तो current affairs based तो नहीं है. earthquake repeat हुआ. अब यहाँ देखो 2022 में again mechanism and occurrence of cloud burst. I would say that I probably was very stupid कि मैं internal security के तो सारे previous year questions करके गया, agriculture के मैं सारे previous year questions करके गया, बट इतना करंट अफेयर्स और इतना कुछ हम ओवरलोड हो जाते हैं बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस कि मुझे याद ही नहीं रहा कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं. एक बार एटलीस्ट मैं देख लेता तो मेरा बहुत फायदा होता. 2022 में अगर मैंने वो पिछला क्वेश्चन क्लाउड बर्स्ट पे लिखा होता तो आई वुड डेफिनेटली हैव अ मच बेटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट हम ये चीज इग्नोर कर देते हैं. अगेन इफ यू लुक एट एनवायरमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेशन दैट इज हैपनिंग, राइट. ऑल्सो इट इज नॉट करंट अफेयर्स बेस्ड. जैसे 2022 में दे आस्क्ड अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग एंड 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल एंड 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो आप देख सकते हो कि कहीं से भी ये करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं था. करंट अफेयर्स करने हैं बट उस पर बिल्कुल ओवर नहीं चले जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भूलना नहीं है, राइट. अब देखो ये है हमारा साइंस एंड टेक, अगेन कंसिडर टू बी वेरी डायनेमिक. 2015 में पूछा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. 2018 में पूछा एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक इन आवर कंट्री, ठीक है. 2021 में रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया. तो सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड अगेन इन 2021, बायोटेक्नोलॉजी पे ही रिपीट किया. और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था 2019 में, उसे देखो. हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज. इसका आंसर ही है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल library. So again there was a huge repetition, right. So in the end, before I take the questions that you had sent to me on Telegram, I would just like to again affirm two things. Firstly, GS3 में जो आप पढ़ रहे हो उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट्स इंटू 50 मार्क्स ईच, तो उनको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना. सेकेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का साथ कभी मत छोड़ना, आपको बहुत हेल्प करेंगे. इवन इन अ पेपर दैट appears dynamic, it merely appears dynamic, it is mainly static. तो इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है. एंड इफ एनी मैसेज यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज टेक दिस मैसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, स्पेशली फॉर GS3. आपके डेफिनेटली 4 या 5 मार्क्स बढ़ाएगा, राइट. एंड आई रियली होप कि मुझे कोई ऐसे बिठा के ये बात समझा देता पहले. नाउ द क्वेश्चंस दैट यू हैव सेंट ऑन टेलीग्राम, आई विल एड्रेस ऑल ऑफ देम, राइट. साइंस एंड टेक में हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे आई विल जस्ट से कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट्स व्हाई आई थिंक यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यू शुड हैव अ साउंड थ्योरेटिकल बैकिंग ऑन ऑल द टॉपिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनकी एक साउंड थ्योरेटिकल बैकिंग लो और आप ये यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू कर सकते हो, राइट. डोंट लुक एट यूट्यूब वीडियोज़ जो यूपीएससी के लिए बनी है, लुक एट यूट्यूब वीडियोज़ जो जनरली साइंस के बारे में समझाने के पर्सपेक्टिव से बनी है. जब आप ये समझ जाओगे उसके बाद you'll be having a much sound theoretical backing, तब आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे and you'll be better prepared for prelims also, right. सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तो I have answered this. We need a sound theoretical backing and for mains what you basically need is applications. जैसे मान लो मुझे बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स बनाने हैं तो मैं 3 चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा. पहले what has India done in biotechnology, what are the applications of biotechnology in various sectors, so applications for medicine, for agriculture, political applications, for social upliftment, biotechnology कैसे काम आ सकती है, and then the way forward for biotechnology. So I would divide my notes like this. I would have the sound theoretical backing of how biotechnology works for the prelims, and for the mains I would mainly focus on its applications, way forward, its challenges, and what India has done, right. एनवायरनमेंट की सेम बात है अगर, तो एनवायरनमेंट में अगेन आई वुड रेकमेंड दैट यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वंस यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा. एंड आफ्टर लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन अगेन, पहले तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसको प्रिपेयर करना. मेंस 365 जरूर देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेना, राइट. आपकी प्रीलिम्स नॉलेज ही मेनली आपको काम आएगी, बस आपको ऑर्गेनाइज डिफरेंटली करना है. इकोनॉमी की बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड स्टडी मृणाल सर्स नोट्स. इस पर ऑलरेडी मैं मृणाल सर के नोट्स पे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगेन आई विल नॉट रिपीट दिस. बट मीन्स के लिए आई थिंक दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग, that his notes are not enough. You will need value addition by reading the economic survey. There is no other way.
इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के लिए मैं मृणाल सर की वीडियो पे मृणाल सर के नोट्स पे वीडियो बना चुका हूँ। मेंस के लिए मैंने बता दिया। आर दे इनफ फॉर इकोनॉमी? इस बार का तो प्री में भी आई थिंक यू वुड हैव रियलाइज दैट यू नीड मोर थिंग एंड डेफिनेटली दे आर नॉट इनफ फॉर मेंस। तो मेंस के लिए तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा एंड प्रीलिम्स के लिए भी आई थिंक दे आर नाउ टू बल्कि एंड अच्छे हैं, दे आर वेल ऑर्गेनाइज, बट 1300 पेज पढ़ के भी अगर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। अप्रोच GS3 PYQs इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया। देर आर 6 टॉपिक्स जो सिलेबस में मेंशन्ड है इकोनॉमिक्स के। आप उनके बेसिस पे फर्दर PYQs को डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद यू सी इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर एग्जांपल इज अ वेरी रिपीटेड थिंग, तो आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। स्टैटिक एंड डायनेमिक पार्ट्स कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक ढंग से कर लो, उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा, राइट। ये दिस इज जस्ट अ फैड इन द मार्केट दैट स्टैटिक डायनेमिक हैज टू बी इंटीग्रेटेड। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एज इट इज। वैल्यू एडिशन मटेरियल कैसे यूज करना है मीन्स के लिए? वैल्यू एडिशन मटेरियल में क्या होता है दैट यू गेट टू नो अबाउट सर्टन फैक्ट्स, डेटा, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स। आप इनको सब्जेक्ट टॉपिक स्पेसिफिक सॉर्ट कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प इंक्रीज योर मार्क्स। how to cover environment portion without taking a course and how to remember conventions, conferences, national park. Okay, तो देखो ऑफ कोर्स कोर्स लेना ना लेना इज कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप इसके बिना करना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड समथिंग फॉर यू। आप PMF IAS बुक से डेफिनेटली पढ़ना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट में है। शंकर IAS के ऐसे पढ़ोगे तो शंकर IAS इज नॉट दैट वेल ऑर्गेनाइज्ड। PMF IAS इज ऑल्सो नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड बट इट हैज गुड कॉन्टेंट। तो इसमें आपको थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन पे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एज फार एज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंसर्न, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सिर्फ वो याद करते हैं जो करंट अफेयर्स में। नेशनल पार्क याद करने के लिए मैंने तो काफ़ी सारे निमोनिक्स बताए थे टू रिमेंबर द स्टेट वेयर दे आर एंड आसपास की रिवर्स वगैरह। बट ये तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा ना, तो आप निमोनिक्स से कर लो या फिर आप खुद से एक बारी में एक दिन में एक स्टेट याद करके कर सकते हो। अगर आप याद करना चाह रहे हो बस नेशनल पार्क का, अगर आपको मियरली स्टेट याद है तो आपका मेजोरिटी ऑफ द काम हो जाता है, बिकॉज बाकी आपकी जोग्राफिकल नॉलेज होती है कि अगर कोई स्टेट अरुणाचल प्रदेश में है, अगर कोई नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है तो वो अल्पाइन जोन में होने की उसकी काफ़ी लाइकलीहुड है, राइट। बट अगर कर्नाटका में है तो उसकी अल्पाइन जोन में होने की लाइकलीहुड ऑलमोस्ट जीरो है, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू नो द स्टेट। तो नेशनल पार्क का सिर्फ स्टेट याद करना। कन्वेंशन की जहाँ तक बात है, कन्वेंशन आपको PMF IAS में सारी मिल तो जाएंगी। ट्राई एंड ऑर्गेनाइज देम इन अ टाइमलाइन, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, उससे आपको मेरे हिसाब से ज्यादा याद रहेगा रादर देन। वहां पर क्या है कि सारी कन्वेंशन दैट आर रिलेटेड आर गिवन इन वन प्लेस बट यू नीड टू रिमेंबर इन अ टाइमलाइन। एंड जो आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज याद करते हो UNFCCC की, उसमें यू नीड टू रिमेंबर दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सिर्फ जो रिसेंट वाली है 25, 26, 27, 28, 28 तक आप याद कर लो। 28 अभी होनी है तो 28 तक आप ढंग से पढ़ो, पीछे की सिर्फ मेजर मेजर चीजें पढ़ लो। हाउ टू कवर एनवायरमेंट सेक्शन एंड इंटरलिंक इट विद ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स तो मैंने आपको बता दिया, मेंस 365 पढ़ लोगे हो जाएगा। बट जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन है रादर देन एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को आप डेफिनेटली ज्योग्राफी के साथ लिंक करके पढ़ना है। फॉरगॉट टू मेंशन दिस इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। जैसे आपने अर्थक्वेक मैनेजमेंट पढ़नी है तो आप अर्थक्वेक पहले ज्योग्राफी से पढ़ना, देन लिंक इट विद डिजास्टर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर GS3, गवर्नमेंट स्कीम्स मैं कहूँगा जो बजट स्पीच में मैंशनड है, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में मेंशन किए हैं, दोज गवर्नमेंट स्कीम्स शुड बी इनफ। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी मैंने बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू द सोर्सेज आल्सो एंड यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू टॉपिक्स सिमिलर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर भी मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस मैं हैंडल कर चुका हूँ। आई थिंक दीज आर द सेम क्वेश्चन सो आई हैव हैंडल्ड देम। व्हाई इज इट टफ टू गेट मार्क्स इन GS3? हाँ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो कभी कभी तो मार्किंग ही डाउन स्केल हो जाती है, जैसे इस बार एवरेज मार्क्स ही सिलेक्टेड लोगों के 80 के आसपास हैं, रैंक 1 के 88 मार्क्स हैं। तो अब इसमें तो देखो कई बार हो सकता है अगर वो UPSC सबके 20 मार्क्स बढ़ा देता तो रैंक 1 के 108 हो जाते, तो लगता कि नहीं यार ये तो उतना नहीं है। यू हैव टू ऑलवेज सी रिलेटिव टू अदर्स। बट GS3 में एक डेफिनेट प्रॉब्लम है कि कुछ वियर्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं। जैसे इस बार देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सेल्यूलोस, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन था, इसको मतलब हैंडल करना मुश्किल था। एक इकोनॉमी का क्वेश्चन ऑन लेबर ऑगमेंटिंग प्रोसेसेस वर्सेस टेक्नोलॉजी ऑगमेंटिंग प्रोसेस, ये भी थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये सरप्राइज क्वेश्चंस एंड अननोन टॉपिक्स, इस पे ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है। बट प्लीज डोंट बी ड्रॉन टू देम, ठीक है। 15 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड होंगे, सिलेबस से होंगे।
पहले इन पे फोकस करते हैं, बाकियों को उसके बाद मैनेज करेंगे। होता क्या है कि 5 क्वेश्चन हार्डली होते हैं, 5 क्वेश्चन, 5 में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हार्डली 5 क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर से होते हैं, और हमारा सारा फोकस इन पे हो जाता है एंड वी इग्नोर ऑल ऑफ दिस। इसको इग्नोर नहीं करना है प्लीज, पहले इस पे फोकस करना है। What extra I will have to do in 2022 2024 means apart from the course, just add the mains 365 of that year. How to collect data and value addition to be written in answer for that extra edge in the marks. Again मैं पहले बोलूंगा बेसिक्स अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। डेटा वगैरह की ना काफी कंपाइलेशंस मीन्स के आसपास आपको मिल जाती है, राइट। ये क्वेश्चन तो चलो इट्स नॉट, इट्स पहले कन्वर्जन्स नहीं कंक्लूजन होना चाहिए, बट ओके। एंड देन दिस इज अ वेरी बिग थिंग, इसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। टू व्हाट एक्सटेंट ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी। देखो इंपॉर्टेंट तो हैं बट ज्यादा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हैं, बिकॉज आप मीन्स में उतना ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे, उतना टाइम ही नहीं मिलता है, राइट। So these are all the relevant questions that I found on Telegram. Thank you for sending them, and thanks to my friend Ahmed for compiling them. In the end, the focus reward, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एटलीस्ट इट मीन्स दैट यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, एंड आप ध्यान से सुनते हो चीज़ों को, और आपके पास इतना फोकस है कि अभी आप टेलीग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील से डिस्ट्रैक्ट होना नहीं सीखे हो, एंड यू कैन सिट एंड फोकस। आधे घंटे की वीडियो पूरी देखना इज़ नॉट एन ईजी टास्क इन टूडेज डे एंड एज। कई बार मेरे से भी नहीं देखी जाती, इवन व्हेन आई वांट टू सी देम। So just a focus reward for you is that you remember to smile. You are definitely hardworking. You are definitely focused. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो में, तो just remember to smile for a bit and do write in the comments that I smiled, so that I know and we can spread some positivity around this. Thank you for watching. I'll see you in the next one.